Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Pragraj. So let's start with the set number 16 of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solution. So this particular set is a puzzle-based set which I have taken from previous year SimCat, and the set says PUBG Association is an association of online players playing PUBG. The association periodically organizes a registration drive for the membership of the association in Delhi. Following details are known about the registration drive of the association held in April 2022. A total of non-registered player participated in the drive. Once a non-registered player finished playing his or her fourth game with any of the existing registered member of the organization, he or she becomes a registered member of the association. The drive had 3 rounds and all players are supposed to participate in each round until they become a registered member. Each player who had not become a registered player at the beginning of the round played at least one, but up to four, including 4 games with any of the existing player member of the organization in the remaining rounds. In all, 3 players each qualified for the membership of the association at the end of the first and second round. The remaining of the 4 players qualified for the membership of the association at the end of the third round. The number of the games played in the first and the second round were 25 and 11 respectively. Only one player played exactly 3 games in the first and the second round. Exactly one player who played 2 games in the first round became a registered member of the association and at the end of the second round. ठीक है. So basically एक अरेंजमेंट बेस्ड पजल है जहाँ पे हमें 10 अलग अलग मेंबर्स हैं जिन 10 अलग अलग प्लेयर्स हैं जिनका कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो कितने नंबर ऑफ राउंड्स खेल रहे हैं और कितने राउंड्स में कितने गेम्स वो खेल पा रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली एक क्रक्स ले ले तो यहाँ पे क्या है कि 10 अलग अलग प्लेयर हैं. 10 प्लेयर में से 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि पहले राउंड में क्वालिफाई कर जा रहे हैं, दूसरे 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर रहे हैं एंड रिमेनिंग 4 प्लेयर आर क्वालिफाइंग इन दी थर्ड राउंड. ठीक है. क्वालिफिकेशन की डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि एनीवन हु कंप्लीट्स हिज फोर्थ मैच वो रजिस्टर्ड मेंबर कहलाएगा. इफ he or she has not completed his fourth match in first round तो वो second round में जाएगा या third round में जाएगा. जब तक वो 4 मैचेस नहीं कंप्लीट करेगा तब तक वो राउंड्स को खेलता रहेगा. ठीक है. So what I have done, I have created a small table जहाँ पे I have mentioned the player A B C D E F G H I J. आप मतलब like I have taken this name as in randomly, मैंने assume कर लिया कि वो 10 का नाम ऐसा कुछ होगा. And you can take it as player number 1 से लेके 10 तक या player number A1 से A10 तक. That is not a concern. That should not be a concern. ठीक है. अब 10 प्लेयर है तो हर प्लेयर का मेरे को पता है कि 4 मैचेस खेलने वाला है. वो जैसे ही 4 मैचेस खेलता है तो वो मेंबर बन जाता है और वो इस पूरे ड्राइव में से क्वालिफाई करके वो हट जाता है. ठीक है. तो मेरे को क्या पता है कि अगर 10 प्लेयर हैं वो लोग 4 मैचेस खेलने वाले हैं, यानी कि इन टोटल मेरे को 40 मैचेस है जिनका पूरा यहाँ पे ऐसे मतलब लिखना है. मेरे को आइडेंटिफाई करना है 40 मैचेस का और कौन से प्लेयर कौन से राउंड में अपना वो मैच कंप्लीट करने वाला है ये मेरे को देखना है. ठीक है. मेरे को पॉइंट नंबर 5 में एक लिखा हुआ था द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इन द फर्स्ट एंड द सेकंड राउंड वर 25 एंड 11. तो पहले राउंड में टोटल 25 खेली गई है गेम और दूसरे राउंड में 11 मैचेस खेले गए. तो रिमेनिंग 4 मैचेस यहाँ पे खेले गए होंगे तभी वो 40 का सम बनेगा. 25 और 11 36, 36 और 4 40. ठीक है. अच्छा, अब अपने को क्या पता है कि हर पहले राउंड में कोई 3 बंदे हैं जो क्वालिफाई कर गए, दूसरे राउंड में कोई 3 बंदे जो क्वालिफाई कर गए और पहले राउंड में कोई 3 बंदे क्वालिफाई किए, दूसरे राउंड में कोई 3 बंदे क्वालिफाई किए और थर्ड राउंड में देयर आर 4 प्लेयर्स हु हैव क्वालिफाइड इन द फोर्थ राउंड. लेट्स से कि वो जो 3 प्लेयर हैं वो ये 3 होते हैं जो पहले राउंड में क्वालिफाई कर रहे हैं और वो ये 3 है जो कि सेकेंड राउंड में क्वालिफाई कर रहा है, ये राउंड 1 में क्वालिफाई कर रहा है, ये राउंड 2 में क्वालिफाई कर रहा है और ये 4 प्लेयर ऐसे हैं जो कि राउंड 3 में क्वालिफाई कर रहे हैं. ठीक है. मैंने रैंडमली एक सेट बना लिया कि एबीसी है जो राउंड 1 में क्वालिफाई कर रहे होंगे, डीईएफ है जो राउंड 2 में कर रहे होंगे और जीएचआईजे है जो राउंड 4 में कर रहे होंगे. ठीक है. अब मेरे को ये देखना है कि भाई ये जो 4 प्लेयर्स हैं ये यहां तक कंटिन्यू हो रहे हो, ये 3 प्लेयर का जो 4-4 मैच का कोटा है वो यहीं पे खत्म हो रहा हो और इनका भी यहाँ पे कोटा खत्म हो रहा हो. ठीक है. अच्छा, अपने को क्या पता था जैसे ही 4 मैच खत्म करोगे वो जो है प्लेयर वो एलिजिबल हो जाता है फॉर बीइंग अ रजिस्टर्ड मेंबर. तो हमने क्या यहाँ पे सोचा था कि यार एबीसी ऐसे हैं जो कि पहले राउंड में हो रहे, तो इनके जो 4-4 मैचेस हैं वो पहले ही राउंड में हो चुके होंगे, यानी कि उन्होंने राउंड 2 राउंड 3 में पार्टिसिपेट ही नहीं करा है, तो इनके 0 मैचेस हुए होंगे. ठीक है. सिमिलरली हमें ये पता है कि राउंड डी ई एफ है जिनका राउंड 2 में हमने कहा था कि ये क्वालिफाई किए होंगे, यानी कि राउंड 2 आते आते इनका 4 वाला कोटा पूरा हो गया होगा. वो प्रॉब्ली 3-1 से हुआ होगा, 1-3 से, 2-2 से, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ होगा, बट वो यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये जो बचा हुआ
ये वाले राउंड है, यहाँ पे ये 0-0-0 करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 लोग हैं ये कम से कम एक मैच तो खेलेंगे ही खेलेंगे, सो एज टू कंप्लीट दियर कोटा ऑफ 4, ठीक है। कम से कम एक मैच तो उनको खेलना ही पड़ेगा, अगर उनका कोटा ही नहीं बचा तो वो राउंड 2 में क्वालिफाई कर गए होते, यानी कि वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनका जो 4 मैच का कोटा है वो कुछ ना कुछ तो बाकी होगा उसमें से। और अगर मैं एक एक चारों को देता हूं तो वो 4 का नंबर बन जाता है, ठीक है। बाय दिस लॉजिक मैंने क्या कंक्लूड मैंने क्या डिड्यूस कर लिया कि ये जो एक एक मैचेस हैं ये चारों लोग एक एक मैच खेलने वाले हैं और इन्हीं का सम जो है 4 का बन रहा है, ठीक है। तो राउंड 3 का इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू फिगर आउट फॉर राउंड 3 फॉर ईच प्लेयर, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूं, मैंने क्या करा, पहले इनका देख लिया कि एबीसी इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, डीईएफ इज आल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग, एंड सिंस आई नो दैट जीएचआईजे हैं जो चारों राउंड 3 में क्वालिफाई कर रहे हैं और राउंड 3 में वो गए हैं, यानी कि उनका 4 वाला कोटा पूरा नहीं हुआ होगा, तो मैं एटलीस्ट एक एक मैच तो देना चाहूंगा ना उनको। मैंने जैसे ही एक एक मैच दिया, मैंने देखा जो मेरा टोटल 4 गेम्स का कोटा है वो पूरा यहीं से पूरा हो गया, जिसका 4 का स्प्रेड है वो 1-1-1-1 से पूरा हो गया, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं। मैंने क्या करा, मेरी जो मैंने पैसेज को पढ़ा था उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आई हैव डन सर्टेन थिंग, मैंने ये थोड़ा फुटनोट अपना कंप्लीट कर लिया, मतलब अपना रफ वर्क कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट वाइज पढ़ते हुए आऊंगा एंड देन उसके बेसिस पे और निकालते हैं क्या क्लूज निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 यूज कर लिया, ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2 को भी यूज कर लिया, बिकॉज पॉइंट 1, 2 और 3 में वो पूरा कॉन्टेक्स्ट बता रहा था कि ये जो पूरी गेम है वो किस तरीके से ऑपरेट होने वाली। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा था कि भाई 10 प्लेयर है, पॉइंट नंबर 2 में ये कह रहा था कि जो 4 गेम खेल लेता वो क्वालिफाई कर जाएगा, पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो 4 गेम अपना किसी राउंड में नहीं कंप्लीट किया तो वो आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट करेगा, और हर राउंड में कम से कम एक ज्यादा से ज्यादा 4 मैचेस वो खेल सकता है हर प्लेयर, ये बता रहा है, ठीक है। आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, इन ऑल 3, अच्छा ये पॉइंट को भी हम यूज कर चुके हैं, हम इसमें लिखा हुआ था कि 3 प्लेयर हैं जो क्वालिफाई कर रहे हैं राउंड 1 में, 3 है जो राउंड 2 में कर रहे हैं और बचे हुए 4 है जो राउंड 3 पे कर रहे हैं, ये भी यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 5 भी यूज कर लिया था, वो तो मैंने पहले यूज कर लिया था जहां पे मैंने इसका ये कर लिया था, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 ही बचा है। पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है, ओनली वन प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 3 गेम्स इन द फर्स्ट एंड द सेकंड राउंड। कोई एक प्लेयर ऐसा था जिसने की 3 गेम खेली है पहले और दूसरे राउंड में, ठीक है। कोई एक प्लेयर है जिसने की पहले गेम, मतलब बेसिकली वो 2 अलग अलग प्लेयर होने वाले, वो सेम प्लेयर नहीं हो सकता, ये चीज को ध्यान देना, ठीक है। मतलब इफ वी गो बाय दिस कि वो यूनिक प्लेयर है जिसने हु हैज प्लेड 3 गेम्स इन राउंड 1 एंड राउंड 2, तो टेक्निकली इट विल बिकम 6 मैचेस, जो कि नहीं पॉसिबल है। हमें क्या पता है, एनी इंडिविजुअल हु प्लेज 4 गेम वो कोटा उसका पूरा हो जाता है एंड ही इज क्वालिफाइड, वो फिर यहाँ से इस पूरे प्रोसेस से हट चुका होता है। तो ये जो बात हो रही है कि एक प्लेयर है जो कि पहले राउंड में 3 गेम खेला और दूसरे राउंड में 3 गेम खेला, वो 2 अलग अलग प्लेयर्स की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, क्या वो मैं 3 वाले यहाँ दे सकता हूँ क्या, थोड़ा सोचना ना। अगर मैं 3 यहाँ देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तभी ये 4 का पूरा होगा, बिकॉज मेरे को यहाँ पे कॉलम पे भी 4 का कोटा पूरा करना है। एंड एक पॉइंट यहाँ पे लिखा था कि हर प्लेयर को हर राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है और मिनिमम एक मैच तो वो खेलेगा ही खेलेगा, ठीक है। until unless he or she qualifies for being a permanent, मतलब registered member, यहाँ लिखा था ना, they are supposed to participate in each round until they become registered member, जब तक वो मेंबर नहीं बनते तब तक उनको हर राउंड में पार्टिसिपेट करना जरूरी है, ठीक है। इस लॉजिक से मैंने क्या डिड्यूस करा यार, जो ये 3 वाले हैं वो GHIJ में से किसी को नहीं दे सकते, तो किसको दे सकते हैं, वो एक DEF में से किसी को देना पड़ेगा, तो एक इसको दे दिया और एक इसको दे दिया, ठीक है। और इनका एक और एक यहाँ दे देते तभी वो पॉसिबल है, बिकॉज हमें इनका 4 का सम बनाना था, इनका भी 4 का सम बनाना था, ठीक है। ओनली वन प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 3 गेम्स इन दी फर्स्ट राउंड, वो बंदा हो गया डी, एंड इन दी सेकेंड राउंड वो बंदा हो गया ई। चलो पॉइंट नंबर 6 भी मैंने यूज कर लिया। पॉइंट नंबर 7, एग्जैक्टली वन प्लेयर हु प्लेड गेम्स इन दी फर्स्ट राउंड बिकेम रजिस्टर्ड मेंबर, sorry, exactly one player who played 2 games in the first round became registered member of the association at the end of the second round. कोई एक बंदा ऐसा था जिसने पहले राउंड में 2 गेम खेली है और वही बंदा है जो राउंड नंबर 2 के एंड होते होते वो रजिस्टर्ड मेंबर बन गया, यानी कि वो यही बंदा होगा जिसने की 2 मैच खेला था और आते आते इसने 2 बना लिया अपना, तो 2 और 2 से 4 बन गया इसका, ठीक है। फिर से ये लाइन पढ़ लेते हैं, एग्जैक्टली वन प्लेयर हु प्लेड 2 गेम्स, यानी कि इसने 2 गेम खेली है फर्स्ट राउंड में एंड बिकेम
रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द एसोसिएशन एट द एंड ऑफ द सेकंड राउंड कंप्लीट होते होते ये रजिस्टर्ड मेंबर बन गया। कैसे बना होगा? जब इसने अपनी चौथी गेम भी राउंड नंबर 2 में ही खेल ली होगी। ठीक है, अब अपने पास क्या बचे हैं? GHIJ बचे हैं, जिनके लिए फिगर आउट करना बाकी है। GHIJ के लिए क्या है? 25 का स्प्लिट में से मैंने क्या करा, 25 का जो ये स्प्रेड होना था पूरे रो 1 के लिए, 4 4 4 12 12 3 15 15 1 16 16 और 1 2 18। ठीक है, 18 कर लिया। नाउ आई एम लेफ्ट विद दी 7 गेम्स फॉर दीस 4 प्लेयर एंड इधर बात करें तो 11 में से 3 2 1 यानी कि 6। आई एम लेफ्ट विद दी 5 फॉर दीस 4 प्लेयर। ठीक है, अब ये 7 को कैसे स्प्रेड करा जाए 4 लोगों में? अब 4 का यूज ले नहीं सकते बिकॉज 4 देंगे तो उसका 5 बन जाएगा। 3 का दे नहीं सकते क्योंकि अगर मैं 3 यहां दे दूंगा तो मेरे को यहाँ पे 0 देना पड़ेगा, तो 3 मैं दे नहीं सकता। तो मेरे को किसका यूज लेना पड़ेगा? 2 और 1 का लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं 2 और 1 का लेता हूं तो मेरा स्प्रेड एक ही बन सकता है। वो क्या बन सकता है? 7 के लिए वो मेरा बन सकता है 2 2 2 और 1 का, और कुछ भी नहीं बन सकता। तो मेरे को क्या मिल गया? 2 2 2 और 1। मैंने रैंडम ये दे रहा हूँ, मतलब ऐसा मत सोचना कि सर आपने ये 2 2 2 1 इसी ऑर्डर में क्यों लिखा, 2 1 2 2 क्यों नहीं लिखा, या 2 1 2 2 1 2 क्यों नहीं लिखा। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मत परेशान होना। वो मैं प्लेयर्स को रैंडमली, मतलब इस पूरी जो ये सेट है इसके अंदर ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्लेयर, मतलब कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं, वो कितने मैचेस खेल रहे हैं या कितने राउंड में कितने मैचेस खेले गए, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। ना ही यहाँ पे विन-लूज की बात हो रही, ना ही यहाँ पे प्लेयर्स के कुछ नाम दिए गए कि जिससे आपको परेशान होना चाहिए। ठीक है, सो 2 2 1 1 दे दिया। अगर यहाँ पे 2 2 1 1 है तो यहाँ पे 1 1 1 और 2 देना पड़ेगा सो एज टू कंप्लीट दिस 4 वाला पार्ट। यहाँ पे भी 4 4 4 4। अच्छा, लेट्स चेक वेदर वी आर एबल टू कंप्लीट दिस 11 और नॉट। 1 3 2 यानी कि 6 7 8 9 और 11, यानी कि ये भी मेरा बन गया और ये भी बना हुआ था। एंड दिस इज हाउ आई कंप्लीटेड 40 वाला मैचेस का नंबर। ठीक है, आई वुड रेट दिस एज अ वेरी इजी सेट, मतलब एग्जाम वाले फेज में हमेशा करना चाहिए। एंड अभी हो क्या रहा है, मैं मतलब सिमकैट से आई बीन ऑब्जर्विंग दैट हर बार एक आध सेट इजी रहता है, बट अभी क्या है कि वो एक सितंबर वाला फेज चल रहा है जहाँ पे आप लोग हर सेट को बहुत ज्यादा वैसा देखते हो कि डिफिकल्ट होने वाला है। सो आई थॉट कि थोड़े इजी सेट्स भी हम करें, बिकॉज हमेशा जो बैलेंस्ड पेपर रहता है उसके अंदर एक सेट इजी रहता है और डुएबल रहता है। सो दिस पर्टिकुलर सेट इज वेरी मच डुएबल, मतलब ये 6 से 7 8 मिनट में आराम से कर सकता है और बहुत स्कोरिंग सेट होगा ये। ठीक है, चलो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन पार्ट। हाउ मेनी मैचेस वर प्लेड इन द थर्ड राउंड? थर्ड राउंड में ये तो मैंने पहले ही 2 मिनट में आइडेंटिफाई कर लिया था। 4 मैचेस हैं, 2 हमने थर्ड राउंड में खेले गए बिकॉज ये हमें पता चल गया था। हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेड मोर मैचेस इन द सेकंड राउंड देन इन द फर्स्ट राउंड? ठीक है, एक तो ई है ऐसा बंदा, ठीक है, और कोई है? और कोई नहीं है, बिकॉज एक ही है जो ई है जिसने की हाउ मेनी प्लेयर प्लेड मोर मैचेस इन द सेकंड राउंड देन इन द फर्स्ट राउंड? एक ई ही है जिसने की, सॉरी एक ई है और एक जे भी है। हाँ, 2 प्लेयर हैं, एक ई है और एक जे है, 2 प्लेयर हैं जहाँ पे हम, ठीक है, बिकॉज बाकी का चेक कर सकते हो 0 0 0 3 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2। ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द सेकंड राउंड? एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द सेकंड राउंड, ये 2 प्लेयर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर सी, दो प्ले हाउ मेनी प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 2 मैचेस इन द सेकंड राउंड? सेकंड राउंड में एक तो ये एफ है और दूसरा जे है जो कि खेल रहा है। ठीक है, हाउ मेनी प्लेयर प्लेड एग्जैक्टली 2 मैचेस इन दी थर्ड राउंड? थर्ड राउंड में तो यार 0, एक भी नहीं है। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेट, कीप प्रैक्टिसिंग।